Let us recall whatever we studied in this topic in advanced subsidiary level. You learn about two techniques of applying the operator of differentiation. That was the basic and the bracket differentiation. In very simple words, you learn to form. You learn about the gradient function. सर अभी क्या पढ़ाना? Differentiation पढ़ा रहा हूँ. अच्छा, So you learn about gradient of tangent, gradient function basically. Very often represented by dy over dx, but not necessarily dy over dx. Lekin this is how we represent a gradient function. And you learn that the gradient at any point on a curve is basically equivalent to the gradient of the tangent at that point. And the normal, अगर मैं normal की बात करूँ at any point of the curve, so that is at right angles to the tangent at that point of the curve. So उसका जो gradient है उसको हम reciprocal करके sign change कर देते हैं. Again, this is all the knowledge that you acquired or that is associated with the coordinate geometry and the differentiation that you learn in AS. ठीक है ना? And अच्छा, वैसे तो अगर आपका एडिशनल मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है, सो एडिशनल मैथमेटिक्स में यू लर्न अबाउट approximate change as well, but that is not part of curriculum of AS pure mathematics 1. But yeah, in P1 you learn about the rate of change of different physical quantities. You learn about what are stationary points. Although you do acquire knowledge about stationary points are basically the turning points. You learn about them associated with the graphs of quadratic functions and cubic functions. Although आपके जो stationary points हैं वो higher degree polynomials में भी होते हैं. अगर मैं quartic functions की बात करूँ या polynomial with degree 5 and higher अगर मैं बात करूँ तो उनके graphs में भी you do have turning points, which we also call it stationary points. But specifically, you learn about the stationary points associated with the graphs of quadratic and the cubic functions in AS. Or in fact, with associated with only graphs of quadratic functions, not even cubic functions. Cubic functions से associated जो आपके cubic functions के graph से associated जो turning points या stationary points हैं, वो we learn about that in A2 in algebra. वो हम later on study करेंगे. Anyways, and you people also study about how you may find out the nature of the stationary point, whether it be the maximum or the minimum. ठीक है ना? तो वो हम कैसे find out करते हैं? उसका भी concept है. मैं उसको जरा re-explain करूँगा. Nature कैसे जो हम find out करते हैं उसकी background क्या है, उसकी logic क्या है? Because you know कि हम जब we find out the double derivative और उसकी अगर value negative आती है तो maximum होता है, अगर positive आती है तो minimum होता है. That's what you have learned. But you must know that what is the logic behind that. Negative आती है तो maximum क्यों है और plus positive आती है तो minimum क्यों है? What's the logic behind it? And I just gonna share with you another technique of finding out the nature. Not always you go for finding out the double derivative. हर दफा आप डबल डेरिवेटिव नहीं इवेल्युएट करते और फिर उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके नहीं चेक करते. उसकी वजह ये है कि एट टाइम्स यू बिकॉज टू फाइंड आउट द नेचर you will be awarded only 2 marks, but sometimes you may encounter functions जहां अगर आप if you go on to find out its double derivative तो वो बहुत बहुत वो हो जाता है, it becomes too much hectic और वो नहीं है, justify नहीं करता, ठीक है ना, for the 2 marks that you will be awarded. So you need to learn another way of finding out the nature, which you can do it quite easily. ठीक है ना? अच्छा, this is what all you learn about differentiation in AS. All of it is going to be carried on in A2 as well.
alongside some new concepts. ठीक है ना? And we're going to start off differentiation in your in A2 with a new technique of differentiation which we call as product rule. अब product rule हमें क्या कहता है? पहली बात तो ये कि मैं आपको पहले तो मिसाल देता हूँ कि प्रोडक्ट रूल की हमें जरूरत पड़ती क्यों है. मैं आपको एक एग्जांपल है. अगर मैं if I go on to differentiate this with basic or bracket differentiation technique, तो वो मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता. उसकी वजह ये है कि अगर मैं even इसको in terms of bracket लिख दूँ, that's going to be the power of half और ये power 1 है. So you can't expand this bracket क्योंकि यहाँ पे अशर आपकी जो number of terms होंगे अलिशबा that will be infinite. अगर power आपकी पॉजिटिव इंटीजर के अलावा हो, नेगेटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन, तो फिर आपके पास जो आप ब्रैकेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रैकेट आर इनफिनिट. तो यहाँ तो आपके पास इनफिनिट टर्म्स है ब्रैकेट. सो ऑफ कोर्स यू वोंट बी गोइंग ऑन टू एक्सपेंड दिस ब्रैकेट और फिर आप इससे मल्टीप्लाई करें और फिर इंडिविजुअल टर्म्स निकाल के अलग अलग डिफरेंशिएट करें. So I would prefer finding out its derivative. हेलो. तो सर कहाँ गए? सॉरी, राउटर ही पता नहीं अचानक वो हो गया, क्या कहते हैं, रिस्टार्ट हो गया. खैर, ये बताएं कि आखिरी बात क्या सुनी थी अरिशबा आपने? सर आपने आखिरी बात क्या सुनी थी बेटा? सर आपकी आवाज थोड़ी अटक रही है, शायद या तो मेरे नेट का कोई मसला है. अशर आपको आवाज आ रही है? जी सर. लास्ट लास्ट चीज आपने क्या सुनी थी? सर आप प्रोडक्ट रूल का बता रहे थे और वो इस सम का बता रहे थे कि इंफिनिट वैल्यू में चली जाएगी अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे. हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पे जो ब्रैकेट की पावर है वो हाफ है. इसके जो टर्म्स हैं, अगर आप इसको एक्सपेंड करने जाएंगे, इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे और आप इसकी एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई करके यू वोंट बी गेटिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. तो फिर आप इनको अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. तो you would go on to differentiate by keeping it this expression in this form. अब ये expression is basically the product of two expressions. तो मैं एक expression को ले लेता हूँ u, दूसरी expression को ले लेता हूँ v. तो derivative of u क्या हो जाएगा? u हो जाएगा 2 और derivative of v क्या हो जाएगा? ये हाफ नीचे आएगा, ठीक है ना, हाफ इनटू ये ब्रैकेट एज इट इज कॉपी होगा, ठीक है ना अलिशबा, और पावर कम हो जाएगी, माइनस हाफ हो जाएगी, -1 होती है ना, इनटू ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसके डेरिवेटिव क्या होगा? 4 होगा.
2 ones are 2 twos are, so that would make it 2 divided by 4x plus 5 to the power of half. इसको नीचे ले गया, पावर आपकी पॉजिटिव कर दी. Is it clear to both of you or not? Yes sir, clear. क्लियर हो गई बात अलिशबा? जी सर. अब प्रोडक्ट रूल आपसे क्या कहता है कि जब आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो dy over dx is how you gonna find out dy. तो जो u है इसको आप v के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करें. और प्लस आप जो v है उसको u के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करें. आपके पास dy over dx कैसे आप फाइंड आउट करेंगे भाई? ये हो जाएगा 2 into 2x minus 1 upon square root of 4x plus 5 plus 2 4x plus 5 का स्क्वायर रूट. अब मैं एलसीएम लूंगा तो 4x plus 5 स्क्वायर रूट आएगा. अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट वुड मेक इट 4x plus 5. 4x plus 5 स्क्वायर रूट जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा. अपॉन तो dy over dx क्या आ जाएगा आपका? 2 to the 4x plus 8x 12x minus 2 plus 10 कितना हो जाएगा? plus 8 अपॉन square root of 4x plus 5. Is it clear or not, Miss Alishba and Mr. Ashar? जी sir, clear. जी सर. सही. इसमें जरा स्टेप्स को आप क्लियरली अगर लिखेंगे तो there will be less chance of doing an error, doing any sort of mistake. समझ गए ना? तो आपने स्टेप्स लिखना, स्टेप्स नहीं छोड़ना. भले थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा हो बट यू हैव टू लाइक मतलब आपने यहाँ पे ना थोड़ा सा ये नहीं सोचना कि नहीं मेरी तौहीन होगी अगर मैं कोई स्टेप्स लिखूंगा. अगर आपने ऐसा सोचा मतलब आप ये भी सोचेंगे यार मुझे आता है मैं क्यों लिखूं, मुझे तो आता है मैं क्यों, तो फिर ये आप अपने साथ ज्यादती करेंगे और कुछ नहीं होगा बस. अच्छा यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है भाई? यहाँ पर आपको दिया हुआ है फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑन द पॉइंट ऑफ द कर्व वेयर ग्रेडियंट इज 0, यानी dy over dx की वैल्यू दी हुई है 0 और आपने एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालने. तो पहले आप dy over dx की एक्सप्रेशन निकालेंगे. उसके लिए आप क्या करेंगे? आप देखेंगे एक्सप्रेशन क्या है. अब अगर आप इस क्यूब को, ठीक है इसमें फाइनाइट टर्म्स है, 4 टर्म्स होंगे, इसमें 3 टर्म्स है, मल्टीप्लाई करेंगे. द प्रॉब्लम इज के अगर आप इसको बैठ के दोनों ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करते हैं फिर इंडिविजुअल टर्म्स निकालते हैं सिंप्लीफाई करके तो यू वोंट बी अवॉर्डेड मार्क्स फॉर दैट. तो फिर आप फालतू काम ना करें ना, जिसके मार्क्स आपको नहीं मिल रहे वो आप काम करने की क्या जरूरत है. आप इसी फॉर्म में रखते हुए करें. यू कैन सी के दिस एक्सप्रेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशंस, 1 2, एक को यू ले लें एक को वी ले लें. तो आपके पास u हो जाएगा 2x माइनस 3 होल स्क्वायर. u का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 नीचे आएगा 2x माइनस 3 की पावर 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट क्या हो जाएगा? 2 to the 4 हो जाएगा. ठीक है ना? और v क्या है आपका? x plus 5 होल क्यूब. तो v डैश क्या हो जाएगा आपका? 3x plus 5 होल स्क्वायर. अंदर का डेरिवेटिव तो 1 है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. अच्छा अब आप अप्लाई कर दें dy over dx.
u times derivative of v plus v times derivative of u. तो dy over dx क्या हो जाएगा? I just take out 2x minus 3 कॉमन, 2x minus 3 कॉमन ले लें और x plus 5 होल स्क्वायर कॉमन ले लें। ब्रैकेट में आपके पास यहाँ पे 2x minus 3 बचेगा और इंटू 3 बचेगा और यहाँ पे x plus 5 बचेगा इंटू 4 बचेगा। ठीक हो गई बात? फैक्टराइजेशन यूज करें ना यार, आप लोग A2 में आ गए तो इतनी तो आती है ना। dy over dx को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं 2x minus 3 x plus 5 होल स्क्वायर और इसको भाई 3 to the 6x plus 4x 10x हो जाएगा, -9 plus 20 हो जाएगा plus 11। तो ये आपकी बेसिकली dy over dx एक्सप्रेशन आ गई। इसको आप जरा इक्वल टू 0 रख दें। तो ये आपके थर्ड से तो x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी भाई? 3/2 आ जाएगी, -5 आ जाएगी, -11/10 आ जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? ये आपको x कोऑर्डिनेट्स निकालने तो सवाल खत्म हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई या नहीं आई? सर आ गई। मिस लिशबा बेटा आपको समझ आ गई? सर सर आप एक बार ये सेकंड स्टेप रिपीट करेंगे? कहाँ से? यहाँ से जी नहीं, 2x सेकंड वाले, सेकंड वाले। 2x minus 3 होल स्क्वायर है और यहाँ 2x minus 3 की पावर 1 है, तो मैंने 2x minus 3 की पावर 1 कॉमन निकाल लिया। यहाँ x plus 5 होल स्क्वायर है, x plus 5 होल क्यूब है, x plus 5 होल स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। तो ब्रैकेट में यहाँ एक 2x minus 3 रह गया, ये तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे अंदर सिर्फ 3 रह गया। यहाँ से स्क्वायर बाहर आ गया तो एक x plus 5 रह गया, ये पूरा बाहर आ गया तो सिर्फ 4 रह गया। तो 3 2 6x plus 4x 10x हो गया, -9 plus 20 plus 11 हो गया। ठीक हो गई बात? सही। उसके बाद ये तीन अलग अलग फैक्टर्स आ गए, तीनों को बारी बारी इक्वल टू 0 रखें, तीन वैल्यूज आ जाएंगी x की, सवाल खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? जी अच्छा, अब आ जाए एक्सरसाइज 4A। अच्छा, ये 4A में अटैच कर रहा हूँ, ये आप लोग कर लिएगा, कोई ऐसा हुआ नहीं। अटैच कर रहा हूँ ताकि आप लोग कर सकें। मैं बुक भी शेयर कर दूंगा ताकि आप इसमें से आंसर्स देख लीजिएगा। फाइल में अटैच करने का पर्पस ये है कि अगर मुझे कुछ क्वेश्चंस क्रॉस करने हो तो मैं आपको बता सकूंगा। तो रेलेवेंट है वही करें, आप सारे करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, ये एक्सरसाइज 4 है, मैंने अटैच कर दी है। अच्छा, अब आ जाए किस पे भाई? क्वेश्चन रूल पे ना। क्वेश्चन रूल यहाँ पे चिपकाते हैं।
ये मैंने यहाँ पे अटैच कर दी। अब मैं इसकी एक एग्जांपल आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ। क्वोशंट रूल, दो एग्जांपल्स हैं, दोनों सॉल्व कर देता हूँ तो खत्म हो जाएगा, समझिए। तो ये ज्यादा बड़ा नहीं है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी वीक हम खत्म कर लेंगे, मंडे टू थर्सडे में इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, अब आ जाए आप डी पावर डी एक्स। तो नाउ यू कैन सी कि आपकी जो एक्सप्रेशन है दैट इज रेशियो ऑफ द टू एक्सप्रेशंस। तो इसको आप प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं और अदरवाइज आप क्वोशंट रूल से कर लें। प्रोडक्ट रूल से कैसे करेंगे, इस नीचे वाली एक्सप्रेशन को ऊपर ले जाएं, पावर -1 कर दें, फिर प्रोडक्ट रूल लगा दें। लेकिन छोड़ें, ये रिकमेंडेड नहीं है। आप अगर रेशियो फॉर्म में दी हुई है आपकी कोई एक्सप्रेशन तो आप उसको क्वोशंट रूल से कर लें। तो उसके लिए आप यू अगेन आपका, अच्छा यू इसमें फिक्स है, इसमें आप अपनी मर्जी से नहीं, न्यूमरेटर ही हमेशा यू होगा, उसका डेरिवेटिव हो गया 2x, डिनोमिनेटर b होगा, उसका डेरिवेटिव हो गया 2, ठीक है। और डी पावर डी एक्स नाउ, अच्छा इसमें आप यू हैव टू बी स्पेसिफिक विद द ऑर्डर। पहले v को u के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करें, और ऐसे ही करना है, माइनस लगाएंगे, फिर u को v के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, और अपॉन आप कर देंगे v स्क्वायर, जो कि है आपका 2x + 1 होल स्क्वायर। सिंपल। तो ये हो जाएगा आपका डी पावर डी एक्स, 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 ओवर 2x + 1 होल स्क्वायर। अब ऊपर वाली अगर फैक्टराइज हो के नीचे से कैंसिल हो सकता है तो करें, अदरवाइज ये तो नहीं हो रहा फिलहाल, ठीक है ना। तो मैं छोड़ दूंगा, बस यही मेरी आपकी हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ आ गई? जी सर। जी सर। अच्छा अब क्या करेंगे, अगेन u is gonna be x - 1 to the power of half, नहीं सॉरी, x + 2 होल टू द पावर ऑफ क्यूब। तो डेरिवेटिव ऑफ u क्या हो जाएगा, 3x + 2 होल स्क्वायर। b क्या हो जाएगा, x - 1 टू द पावर ऑफ हाफ, और b डैश क्या हो जाएगा, हाफ 1 ओवर 1 अपॉन 2 x - 1 टू द पावर ऑफ हाफ। अलीश भाई ये बेसिकली हाफ नीचे आएगा, x - 1 एज इट इज कॉपी करेंगे, माइनस हाफ होगा इंटू 1, इसको मैं नीचे ले आया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पावर पॉजिटिव कर दिया। अब डी ओवर डी एक्स निकालना है हमें, तो पहले b को u के डेरिवेटिव से करेंगे, माइनस फिर u को v के डेरिवेटिव से करेंगे, फिर आपका हो जाएगा ये, अब मैं एलसीएम लूंगा ना, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, बेसिकली हाफ है ना, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो हो जाएगा बेसिकली 6x + 2 होल स्क्वायर, x - 1 माइनस x + 2 होल क्यूब
ओवर 2x माइनस 1 2 ये लगा दो, अब स्क्वायर रूट लगा दो 2x माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स सिंप्लीफाई होने के बाद क्या आ जाएगा भाई, x प्लस 2 होल स्क्वायर कॉमन ले लें, ब्रैकेट में रह गया 6 इंटू एक्स माइनस 1 यानी 6x माइनस 6 माइनस, या बल्कि इसको मैं स्टेप में लिख देता हूँ, 6 इंटू एक्स माइनस 1 रह जाएगा माइनस ब्रैकेट एक x प्लस 2 रह जाएगा अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 1 2 स्क्वायर एक्स माइनस 1 स्क्वायर रूट, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर 6x माइनस x 5x माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 ओवर x माइनस 1 स्क्वायर रूट 2। ठीक है ना, यहाँ पे सवाल खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू और नॉट? जी सर क्लियर है। सलिजवा आपको क्लियर है? जी सर। कल हम डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल लोगरिथम फंक्शंस करेंगे, परसों पैरामेट्रिक, फिर इम्प्लिसिट, फिर कंपाउंड। ठीक है ना, छोटा सा है, लंबा नहीं है ज़्यादा। फिर मैं आप लोगों के साथ वर्क बुक शेयर करूंगा P3 की, टॉपिकल वर्क बुक। फिर आपने उसमें से क्वेश्चंस करेंगे, जो डिफरेंशिएशन का यूनिट होगा उसमें से आप उसके क्वेश्चंस करेंगे। खत्म हो जाएगा तो फिर लास्ट में आप लोग एयरली करेंगे फ्रॉम 19 टू 22। उसके बाद भी टाइम बचेगा इंशाल्लाह होपफुली, तो फिर आप 2008 और पीछे कर लीजिएगा फॉर द प्रैक्टिस। 4B है, मैं अटैच कर देता हूँ। ये सब हटा दें, इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। बुक में आपको दे रहा हूँ आंसर्स, उसमें है एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चंस करने हैं मैंने लगा दिया। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लोग ले लें, क्योंकि अभी फाइल मैं भेजूंगा टॉपिक जब एंड हो जाएगा। अभी फिलहाल स्क्रीनशॉट एक ही पेज है, इनफ है, स्क्रीनशॉट ले लें, कोई भी ले ले। अशर आप ले लें, ग्रुप पे पोस्ट कर। ओके सर। और अलिशबा आप भी ले लें, आप ग्रुप पे पोस्ट कर दें, आपका ग्रुप अलग है। ओके सर। सर वो जो आपने एएस मैथ्स में आज करवाया था, उसकी आपके पास स्क्रीनशॉट होगी, आप वो शेयर कर सकते मैं भेजता हूँ, उसकी भी भेजता हूँ, है मुझे भेजना था, मैं भूल गया। हाँ भाई, क्लियर है एवरीथिंग? यस सर। जी। अच्छा, एक तो ये है कि आप लोगों का जो है ना, दो पतले रजिस्टर ले लें। एक में आप लोग करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक, एक में करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिकल वर्कबुक। तो अभी ये जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं, ये आप एक में कीजिएगा, जब यूनिट खत्म हो जाएगा फिर टॉपिकल वर्कबुक के जो क्वेश्चंस है उसको दूसरी नोटबुक में कीजिएगा, क्योंकि वो बेसिकली चलते रहेंगे। हो सकता है दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा लेकिन आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी ना, लेकिन दूसरे टॉपिक्स के, तो इस वजह से आपकी जो बुक क्वेश्चंस जिसमें आप अटेम्प्ट कर रहे हैं
नोटबुक, वो आपका सेपरेट होना चाहिए विद दैट वन जिसमें आप वर्कबुक से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। 2 पतले पतले रजिस्टर्स ले लें, तो प्रैक्टिस आपने बहुत करनी है, वो मैं करवाऊंगा आपको। और ये एक्सरसाइज 4 है और 4B है, ठीक है ना। अब आपका ये टास्क है कि आपने कंप्लीट करना है। अच्छा देखें, जैसे क्वेश्चन 1 है, उसमें आपको सारे पार्ट करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी 2 कर लें, जैसे H कर लें और D कर लें, एक स्क्वायर रूट वाला कर लें, एक बड़ी पावर वाला कर लें। तो जिसमें मल्टीपल पार्ट्स हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन 1 है, इसमें भी 2 कर लें, इसमें भी 2 कर लें, लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले हैं वो सारे आप करेंगे, ठीक है ना। अच्छा जो 6 है, जैसे 6 है, इसमें भी आप एक कर लें, बहुत है, लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले हैं वो सारे हैं। ठीक हो गई बात। एक दो हिंट दे देता हूँ जो कि आपकी बेसिकली क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। अब मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ सिर्फ, जो कि इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपको इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है ग्रेडियंट, आपको चाहिए होता है पॉइंट। अच्छा पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, इसको वाई की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, पॉइंट आ गया आपके पास। ग्रेडियंट निकालना है टेंजेंट का, तो टेंजेंट का ग्रेडियंट इस पॉइंट पे वही होगा जो इस पॉइंट पे कर्व का ग्रेडियंट। कर्व का ग्रेडियंट कैसे आता है, dy ओवर dx। तो dy ओवर dx की एक्सप्रेशन आप निकालने हैं, वो कैसे निकालनी है वो आप खुद डिसाइड करेंगे कि ये बेसिक टेक्निक से निकालनी है, ब्रैकेट टेक्निक से निकालनी है, प्रोडक्ट रूल से निकालना है, या जो है क्वोशिएंट रूल से निकालना है। तो ग्रेडियंट फंक्शन कैसे निकालना है वो तो आप खुद डिसाइड करेंगे बाय लुकिंग एट द एक्सप्रेशन। वंस ग्रेडियंट फंक्शन आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, ग्रेडियंट आ जाएगा। ग्रेडियंट आ गया, पॉइंट आ गया, इक्वेशन बनाते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c से। आज ये y इक्वल्स टू mx प्लस c से इक्वेशन बनानी आती है आप दोनों को, नहीं आती? must not be that much difficult। मैं आपको ना क्वेश्चन 4 कर देता हूँ। इसको हम ना चेंज कर लेते हैं, इसको हम लिख देते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है भाई, तो आप लोग अपने स्क्रीनशॉट डिलीट कर दें, अब मैं सॉल्व कर दूं फिर स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो वंस वेयर द कर्व मीट्स द y एक्सिस, y एक्सिस का मतलब क्या है भाई, x कोऑर्डिनेट 0 है, y इंटरसेप्ट है ना, x कोऑर्डिनेट 0 है। तो जरा मैं x 0 डालें, मैं y कोऑर्डिनेट निकालता हूँ, तो ये देगा -2। तो आपके पास जो पॉइंट है जहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज 0, -2। ठीक हो गई बात। अब आपने निकालना है ग्रेडियंट फंक्शन, उसके लिए आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे एज पर द गिवन एक्सप्रेशन जो कि आपको दिख रहा है। तो u आपका हो जाएगा x+2 और v हो जाएगा आपका x-1 होल क्यूब। अच्छा इसमें u डैश आपका हो जाएगा 1 और v डैश हो जाएगा आपका 3x-1 होल स्क्वायर। अच्छा तो आपकी dy ओवर dx की एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, u टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ v, यानी 3 into x+2 into x-1 होल स्क्वायर प्लस v टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ u x-1 होल क्यूब। अब मैं इसमें से कॉमन क्या ले सकता हूँ, x-1 होल स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। x-1 होल स्क्वायर कॉमन लिया अलिशबा, व्हाट यू आर लेफ्ट विद 3 ब्रैकेट x+2 रह जाएगा और यहाँ पे x-1 रह जाएगा। तो dy ओवर dx का आ जाएगा आपके पास x-1 होल स्क्वायर 3x प्लस x 4x और 6-1 5 4x प्लस 5। इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, dy ओवर dx की जो वैल्यू आएगी वही टेंजेंट का ग्रेडियंट भी होगा। एट व्हाट पॉइंट, एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0। तो आपका जो dy ओवर dx
और जो टेंजेंट का ग्रेडियंट है वो इक्वल होते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व दैट इज कमिंग आउट टू बी 5। अब मैं इक्वेशन बना लूंगा y माइनस y1। क्या आपको फॉर्मूला आता है या नहीं आता अलिशबा? y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। अशर आपको आता है? जी सर आता है। y माइनस 2 इक्वल्स टू mx माइनस 0। तो आपकी जो इक्वेशन हो गई वो y इक्वल्स टू 5x माइनस 2 हो जाएगी। ठीक हो गई बात? ये आपकी इक्वेशन आ गई, सवाल खत्म हो गया। इज इट क्लियर और नॉट बोथ ऑफ यू? यस सर क्लियर। इसी तर्ज पे बाकी क्वेश्चंस भी हैं, काइंडली सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस आपको दे दी हैं, ठीक है ना? ये एक मिनट बल्कि आप लोग बोलें, एक मिनट रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर देता हूँ।